Um, Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Please mute yourself. Good afternoon. Okay, so today's topic is really important. I am rushing to the topic itself today क्योंकि that is going to solve all your problems. जो आपको दो एक दिन से जो problems आ रही है कि how many nutrients to take, how do you figure out कि कितना nutrient होना चाहिए किसमें, तो it is very very difficult. So we are going to do we are going to plan. We are going to know how to plan the diet. All the practical steps that we use for diet planning. Okay, this today we are going to talk about. Now, first of all, before we plan a diet, we need some data. हम ऐसे ही किसी की डाइट नहीं प्लान कर सकते कि अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो उसकी डाइट प्लान नहीं, ऐसे नहीं होता है. We need data. So first of all, you need to know their age. अगर 2 महीने का बच्चा है तो उसको हम 2 साल के बच्चे की डाइट नहीं दे सकते हैं, right? So age should be a major factor. Then gender, male है कि female है, you know, because they have different requirements. Activity level, बहुत active है या बिल्कुल sedentary है. कोई एथलीट होता है जैसे एक्टिविटी लेवल में और कोई ऑफिस वर्कर होता है तो उनके एक्टिविटी लेवल में सेम एज सेम सेक्स में भी बहुत डिफरेंस आता है. तो एक्टिविटी लेवल इज इम्पोर्टेंट. देन इनकम, हाउ व्हाट वी आर सेइंग, हाउ मच ऑफ इट कैन दे अफोर्ड. Religion will give us a socio-economic background. Religion will also give us their food preferences, right? Socio-economic background is important. Health status and clinical status is important. Preferences उनकी food में क्या है और उनको food allergies अगर है तो कोई कौन सी food allergies है. तो ये सारी सब चीजें हमें अपने clients के बारे में पता होनी चाहिए to figure out what to do with that. Okay, now basic चीज जो हम लेते हैं वो है BMI calculation. BMI calculation कैसे करी जाती है? यहाँ पे अगर just focus here, if you see that the weight is 80 kgs, okay, the height should be in meters. अगर हमारे पास सेंटीमीटर में हाइट है तो उसको हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो weight in kgs should be divided by, उसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, height in meters raised to the power 2. It is not multiplied by 2, it is raised to the power 2. ठीक है? सो दैट मीन्स ये आना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है? यानी कि इसको हमने 2 बार खुद से मल्टीप्लाई किया और फिर हमें ये फॉर्मूला आया, ठीक है? 1.82 मल्टीप्लाइड बाय 1.82 आया हमारा 3.31. अब 80 को हम 3.31 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 24.1 किलोग्राम्स, क्योंकि वेट किलोग्राम्स में था, पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी हाइट मीटर्स में थी. So this is your basic formula of BMI. अब BMI को बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स. ओके, तो बॉडी मास इंडेक्स क्या करता है? बॉडी मास इंडेक्स हमें बताता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज स्पेशली रिलेटेड टू ओबेसिटी. अगर लेस देन 18 की हमारे पास वैल्यू आती है अगर यहाँ पर, तो हमारा हो जाता अंडरवेट, ठीक है? बड़ी वैल्यू आती है अप टू 23, up to 25 actually. So it is normal weight. Greater than 25 में फिर आपका grade 1 sorry overweight आता है, and then you will go to grade 1, grade 2 and grade 3 obesity. ठीक है? grade 3 मतलब आपका almost greater than 35 आएगा अगर आपका BMI, तो आपका grade 3 होगा, राइट? सो इससे हमें पता लगता है, अब जैसे ये मुझे पता है कि दिस इज in the normal range, that means that the person doesn't need to lose weight, they have to maintain weight. So when you are maintaining the weight,
first you will take out, okay, let's go to the steps, let me not confuse you. पहला step ये होगा कि हम BMI निकालेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि a person is in which weight range. ठीक है? Then we will take out then we will decide from this table, we will decide the physical activity factor value or the PAL values. PAL values में men और women के लिए activity factor different रहता है. ये हम adults की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking only about adults in this, okay? And this is the activity status. अगर person sedentary है, sedentary जने के लिए 8 hours of sleep डिफाइन की गई है and 8 hours of light work डिफाइन किया गया है. So that will be sedentary, okay, with little or no activity. So sedentary आपका फैक्टर men and women का सेम है. लाइट एक्टिविटी का मतलब कभी कभी कोई एक्टिविटी हो गई या दिन में कभी कोई एक्टिविटी हो गई, दैट इज अ लाइट एक्टिविटी. सो यू विल नॉट, एंड लाइट एक्टिविटी डज नॉट मीन कि मैं उठ के यहाँ से उठ के वहां बैठ गई, दैट इज नॉट लाइट एक्टिविटी. लाइट एक्टिविटी मीन्स प्रॉपर आपने कुछ किया उस दिन, ओकेजनली आपने जैसे वीकेंड्स पे लोग क्रिकेट मैच खेलने चले जाते हैं, तो दैट इज योर लाइट एक्टिविटी, right? Then there is moderate activity. When you have daily planned activities, like you're going to gym or you're going for a 1 hour or 2 hour walks, like 1 hour in the morning, 1 hour in the evening, or you're going to the gym every day, so that is your moderate activity status. Okay, तो भी इसमें भी टाइम का रहता है. अगर मॉडरेट एक्टिविटी भी आप बहुत कम टाइम के लिए कर रहे हैं, हाफ एन आवर और सो, देन यू टेक इट टुवर्ड्स लाइट, यू विल नॉट टेक इट टुवर्ड्स द मॉडरेट एक्टिविटी स्टेटस. Then you have the heavy activity, जिसमें several hours of continuous exercise, that is your heavy activity status. And then there is exceptional activity, vigorous workouts for extended hours. तो ये होता है कि जिनका काम ही वो एक्टिविटी करना है. फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स हैं, वो 4 घंटा सुबह ट्रेन करते हैं, 4 घंटा शाम को ट्रेन करते हैं, ठीक है, बीच में रेस्ट करते हैं. सो दैट इज एक्सेप्शनल एक्टिविटी. जो आर्मी पीपल है जिनका बहुत ग्रूलिंग शेड्यूल है, देयर एक्टिविटी इज एक्सेप्शनल एक्टिविटी. ओके, so that is your exceptional activity where you are dealing with all these things. Now we're going for BMR calculations. Dr. Bhumika, yes, mostly yoga will come under light activity. Just a minute. कुछ confusion हो गया है. Okay. Now BMR is basal metabolic rate, or what is basal metabolic rate? Okay, basal metabolic rate is your basic rate on which that much amount of calories you need to survive. Okay, now let's go on to the formula. We want to do the formula for कैसे निकालना है. बेसल मेटाबॉलिक को रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर रेट भी बोला जाता है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेल. ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ये कांस्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला लगा के रखना है, ठीक है. इसमें आप वेट लेंगे केजीज में, हाइट लेंगे सेंटीमीटर्स में. यहाँ पे हाइट मीटर्स में नहीं लेनी है, यहाँ पे हाइट लेनी है आपको सेंटीमीटर्स में. एज लेनी है आपको ईयर्स में, मंथ्स में नहीं लेंगे, ठीक है. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मेल. REE क्यों लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, एंड इट इज प्रिटी मच सिमिलर टू द बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है. तो ये हमने निकाल दिया रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर. आपने BMI निकाला था 80 kg, हाइट 182 सेंटीमीटर्स. BMI हमारा था 24.1, ठीक है. तो ये BMI है. नाउ आई एम चेकिंग आउट कि उसका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या निकला, ठीक है. सो आई हैव सॉल्व द ब्रैकेट्स. वेट की जगह सब पहला ब्रैकेट ये सॉल्व किया, 13.8 इंटू वेट, यानी कि 80 kg से मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 1104. फिर मैंने हाइट को मल्टीप्लाई किया 5 से, दैट इज कमिंग आउट टू बी 910. फिर मैंने एज को मल्टीप्लाई किया इससे फैक्टर से, एंड आई एम गेटिंग 250.12, ठीक है.
पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किए, उसके बाद मैंने ये सारा सॉल्व किया। मैंने जो एडिशन करना था, इन तीनों चीज को ऐड करना था, वो मैंने पहले ऐड कर दिया, और उसमें से ये वाला पोर्शन मुझे माइनस करना था, वो मैंने माइनस कर दिया, और मेरा आंसर आया 1830। ठीक है, दिस मच कैलोरीज आई नीड फॉर माई रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि जब मैं लेटी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तब भी मेरी सांसें चल रही हैं, हार्ट बीट इज गोइंग ऑन, सो दैट फॉर ऑल दैट फंक्शंस मैं देख पा रही हूँ, माई ब्रेन इज वर्किंग, so all those functions require energy. This is the basic energy which I will need, for a male, not for a female, for a male, right? Step 3 क्या होता है, हमें एक्टिविटी को भी फैक्टर इन करना है। हमने एक्टिविटी की बात करी तो सिडेंट्री एक्टिविटी का है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया एक्टिविटी फैक्टर के साथ। तो अब हमें पता लग गया कि उनको टोटल पूरे दिन में 2196 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन की कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे निकाले। ठीक है, तो कैलोरी बीएमआई से हम सिर्फ इतना पता करेंगे कि हमारे पेशेंट को वेट लूज करने की जरूरत है, कि वेट मेंटेन करने की जरूरत है, कि वेट गेन करने की जरूरत है, दैट इज ऑल। ठीक है, और इन सब चीजों से हमें ये पता लगेगा, ये फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर से और इस फॉर्मूला से हमें ये पता लगेगा कि कितना कैलोरीज हमें करना है। Now this is for males, we have another formula for females. Okay, formula for females is slightly different, but steps वही है, आपको इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। ठीक है, you have to solve this formula. Okay, this formula you have to solve, and if it's a female, if we have, इन्होंने example दिया हुआ है, एक 61 kgs and height is 162 centimeter, age is 35 years. So उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट है 1375, उनको इतना कैलोरीज चाहिए बेसिक काम के लिए, और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए उन्होंने मल्टीप्लाई किया सेडेंट्री एक्टिविटी से, तो उनको आया 1788 किलो कैलोरीज पर डे। दिस कैलोरीज इज पर डे। ओके, हर रोज इतनी कैलोरीज कंज्यूम होती हैं फॉर दैट पर्सन, शी विल रिक्वायर दिस मच कैलोरीज, राइट? सो जब भी हमको वेट लॉस करना होता है तो हमें 500 कैलोरीज हम रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हमारे क्लाइंट का 2196 आया और हमें चाहिए कि नहीं उनका वेट लॉस होना चाहिए, तो हमने उनको 500 कैलोरी हटा दिया उसमें। ठीक है, अब इस 500 कैलोरी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगी, कैसे पता करूंगी कितने कार्ब्स चाहिए, कितना Pratibha, what are these constant already assigned in the equation? For all practical purposes, we don't need to know where the constants are coming from. Okay, this equation is called Harris-Benedict's equation. So they are the scientists which have calculated these constants and which have calculated this formula. Kirti, it is 655. The formula is correct. Kayan, can we increase or decrease the metabolism? You are going ahead. Let's first learn what do we need to maintain the metabolism. Yoga and pranayam will always come into light activity. They will not come in moderate activity. Light activity से ज़्यादा वो नहीं है, या तो sedentary या फिर light. Ravi, what will be the timeline for weight reduction? There is no timeline. Everybody's body is different. They will respond to diets differently. Some people will lose faster. Some people will take time to lose. All right. So let's now find out कि हमें इसको कैसे हमें इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमें ये पता लग गया है कि एक दिन में एक जने को कितना कैलोरीज लेना है। अब हमें ये पता करना है कि हम उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स कितने दें, प्रोटीन्स कितने दें और फैट्स कितने दें। तो वो कैलकुलेट करने के लिए द नॉर्मल दिस वन इज, सपोज फॉर एग्जांपल this is something that I'm going to tell you, I'm going to guide you about, but this is not the fixed thing. You can change it. Okay, you can change it. If you remember, we can take carbs up to 65%. कार्ब्स आप 65% तक ले जा सकते हो और फैट्स को आप 20% तक ला सकते हो. Absolutely no problem in that. Okay, fats can go low like 15 or 20% and carbs can go up to
65%, which is the normal way of life. Okay. Protein, this is a good amount of protein. 50% is a good amount of protein. 12 to 15% is required for normal sedentary person. Okay, now what we have done is, अगर मैंने ये सोचा कि मेरी कार्ब्स 50% कार्ब्स मेरी इतनी कैलोरीज की 50% कैलोरीज कार्ब्स में से आ रही है, तो मैंने परसेंटेज निकाल ली. देन 15% मेरी आ रही है, 15% कैलोरीज मेरी प्रोटीन से आ रही है, 50% मेरी आ रही है फैट से. ठीक है, सो आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग अकॉर्डिंग टू दिस. ऑलराइट, सो दीज आर द, इतने टोटल कैलोरीज में से इतना कैलोरीज मेरा कार्ब से आएगा, इतना प्रोटीन्स और इतना फैट से. दिस इज गोइंग टू हेल्प मी डिसाइड हाउ मच ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स आई एम टेकिंग. Okay, now you know that a gram of 1 gram of carbohydrates will give 4 calories. 1 gram of protein will also give 4 calories and 1 gram of fat will give 9 calories. So अब अगर हम इसको करेंगे तो हमें कितने, अगर हमारे पास कार्ब्स आ रहा है, तो अगर एक कार्ब से मुझे 4 कैलोरीज मिल रही है और मुझे इतनी कैलोरीज चाहिए, तो आई डिवाइड इट बाय 4, तो मेरे को पता लग जाएगा इतना 224 grams of carbs I need. Okay, similarly ये calories I'm going to divide it by 4 because protein gives me 4 calories, so I'm giving 67 grams of protein. And similarly 35% if I'm taking from fats, then but fats के लिए हम 9 से divide करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम फैट हमें 9 किलो कैलोरीज देता है, तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे एंड वील गेट दिस मच अमाउंट ऑफ 69.7 grams of fat. Now this is the actual grams that we want of nutrition that we want from our food. Now you know that कि मुझे इतने carbs देने हैं अपने client को, इतना प्रोटीन देना है और इतना फैट देना है. So after this calculation you will know how much is it. Now moving on to food exchange. Now फूड एक्सचेंज में हमारे पास बहुत सारे फूड ग्रुप्स होते हैं. सीरियल्स एंड पल्सेस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मीट होता है, एग्स होता है, फैट्स एंड शुगर्स होते हैं. ऑल दीज देयर आर फूड एक्सचेंज. From the previous slide, where did the factor 500 deduction come from? Ideally we want 500 deduction निराली, but अगर आपको लगता है 500 नहीं चाहिए तो आप 300 भी कर सकते हो उसको. Like for weight gain is usually slower. I go for a 300 plus. Okay, and ideally आप चाहते हो कि 500 ग्राम एक patient, how this 500 has come across, that 500 ग्राम fat हर patient या 500 ग्राम weight हर patient एक हफ्ते में lose करे. That will be the better way to lose weight because it's going to come in very nicely. तो उसके हिसाब से 500 calories का calculation हुआ है. ठीक है, अगर weight gain का goal है तो 500 तक जाने की जरूरत नहीं. You can start with 300 because stuffing a person with food is difficult. Dr. Bhumika, I just told that carbs, fats and proteins की जो percentage हमने ले रखी है उसको आप change कर सकते हो. ठीक है, उसको आप अपने पेशेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे. ठीक है, ओके. सो वी आर टेकिंग स्टार्च ग्रुप्स. आप देखेंगे स्टार्च ग्रुप्स में क्या क्या आ रहा है. स्टार्ची फूड्स जो आ रहे हैं, ब्रेड है, चपाती है, पीज है. तो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 3 ग्राम प्रोटीन्स एंड 80 कैलोरीज आर कमिंग फ्रॉम हाफ कप ऑफ ओटमील, या 1 slice of bread, या 1 small chapati, okay, या फिर half cup of either corn or peas. ठीक है, so we are going through all these exchanges so that you know that कितने में से कितना आपको मिल रहा है. ठीक है, that is how you are going to do it. फ्रूट ग्रुप में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन बहुत कम फ्रूट्स में मिलता है एंड कैलोरीज भी ज्यादा नहीं मिलती. ठीक है, apart from avocado, and if I am not knowing all the exotic fruits, but avocado is one fruit I know that which is not considered in the fruit group. It is considered in the fat group because उसमें बहुत अच्छे amount में fats रहते हैं. Then there is the milk group. Okay, 2% low fat हम ले रहे हैं because we are talking about the weight loss diet. So you can have milk, you can have soy milk, and you can have 2/3 cup of yogurt. This is going to provide 12 grams of carbohydrates, 8 grams of proteins, fats, and this much amount of calories.
वेजिटेबल ग्रुप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कम होते हैं एंड कैलोरीज भी कम होती हैं. ठीक है, सो इट्स फॉर एग्जांपल्स आर 1 cup baby carrots, 1 cup diced tomatoes, 1 cup of cucumber, 1 cup of cooked spinach, cooked vegetables like carrot, broccoli, zucchini, cabbage. These are all having 5 grams of carbohydrates and maximum 2 grams of protein. ठीक है, this 2 grams of protein is also there if you are taking more or less the green leafy vegetables. मीट एंड मीट सब्स्टिट्यूट्स, मीट के सब्स्टिट्यूट्स मिल्क प्रोडक्ट्स में से आएंगे या फिर एग होगा. ठीक है, सो यू कैन हैव हाफ कप एग सब्स्टिट्यूट, लीन मीट 30 grams, 1 egg और 30 grams of cheese या पीनट बटर. पीनट बटर इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. उसमें क्या होगा, आपके पास फैट भी रहेगा, सॉरी फैट भी रहेगा, प्रोटीन्स भी रहेगा. आप ये इसमें देखेंगे कि ज्यादातर की प्रोटीन की अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है. हाई फैट में फैट बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई द कैलोरीज आर मोर. वेरी लीन में कैलोरीज आर लेस बट प्रोटीन्स और फैट इज ऑल्सो वेरी लेस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 1 ounce ऑफ चीज यानी कि 30 grams ऑफ चीज इज 1 exchange. ठीक है, एग इज 1 exchange. 50 ग्राम होता है यूजुअली एक एग. दैट अगर आप बड़े साइज का लेते हैं या छोटे साइज का लेते हैं तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ डिफरेंस, बट on an average 1 egg should be around 50 grams and that will constitute of 1 exchange of meat, right? फैट ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नेग्लिजिबल होते हैं या फिर होते ही नहीं है. एंड उसमें एक एक्सचेंज को 5 ग्राम ऑफ फैट लिया जाता है. एक चम्मच 5 ग्राम फैट होता है, उसमें 45 कैलोरीज होती हैं. क्यों होती है? क्योंकि 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं, तो 5 ग्राम में 45 कैलोरीज होगी. 9 टेबल है. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स होते हैं ऑयल, पीनट बटर में भी फैट होता है, क्रीम चीज में भी फैट होता है जो स्प्रेडेबल चीज आती है, रिड्यूस फैट मेयो उसमें भी होता है, घी तेल बटर इन सब में फैट रहता है. ओके, दिस इज द बेसिक exchange list on which we work. Please take a good look at this. I want you to read this one and I want you to take a good look at this one and just see कि इसमें क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, ये सारे फूड ग्रुप्स हैं. ये पोर्शन साइज है, रॉ पोर्शन साइज है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ रॉ 30 ग्राम सीरियल्स की, रॉ 30 grams pulses की. These are all raw portions and this is the amount of calories you are getting from one portion, only one portion. Then amount of energy from one portion, amount of protein from one portion, amount of carbohydrates from one portion, and amount of fat from one portion. All right, so you are just go through this table. Meenakshi, I will explain it. I just want all of you to read the table and see कि इस टेबल में से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा. Yes, Swati, 30 grams of raw millets will come in one portion. Now, portion is different and serving size is different. Serving size चीजों का अलग अलग हो सकता है, पर portion हम ऐसे define करते हैं. These are all raw vegetables, yes. क्योंकि 100 grams of cooked vegetables खाना is very difficult. I will tell you what exchange means, definitely. Geeta, no, there is no fat in sugar. Sugar is an example of a simple carbohydrate. Rama Gupta ji, in fruits, all fruits don't have similar calories.
दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीज। ये फूड ग्रुप्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि एक एवरेज हम निकाल रहे हैं। पल्सेस क्या है? पल्सेस मतलब आपकी दालें, ठीक है। पल्सेस एंड लेग्यूम्स, आपकी दालें और आपके जो साबुत जो आप लेते हैं, मूंग, मोठ, छोले, राजमा, वो सब हमारे पल्सेस के अंतर्गत आता है। एग, यूजुअली एक एग 50 ग्राम्स का एवरेज निकलता है, दैट इज व्हाई वी हैव गिवन ग्राम्स हियर एंड नॉट द 1 egg or 2 egg. Okay, now you have to understand that this one portion, suppose for example I am making a diet for जैसे अभी हमने बात करी, अगर सपोज आई एम वी आर मेकिंग अ डाइट फॉर 1800 कैलोरीज और उसका सब हमने ग्राम्स और वो सब निकाल लिया है। नाउ वी नो दैट वी हैड अराउंड 224 grams of carbs in it, right? So now what I am going to do here is I am sorry. Okay, so now what we are doing is we have one exchange. Now exchange list का मतलब क्या होता है? जैसे कि सीरियल्स हमने लिए, ठीक है, सपोज हमने सीरियल्स लिए। अब इसमें मैं व्हीट भी दे सकती हूँ, मैं बाजरा भी दे सकती हूँ, मैं ज्वार भी दे सकती हूँ, मैं रागी भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो मैं पोहा भी दे सकती हूँ, मैं सूजी भी दे सकती हूँ, मैं चावल भी दे सकती हूँ। ये सब मेरे सीरियल्स एंड मिलेट्स में आ गया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ पूरे दिन में, सपोज अगर मेरी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे सीरियल्स देने हैं, सपोज मुझे 5 चपाती खिलानी, 5 एक्सचेंजेस अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं 5 एक्सचेंज दूंगी, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे चपाती खिलानी, मैं उनको सुबह पोहा दे सकती हूँ, दोपहर में 2 गेहूं की रोटी दे सकती हूँ, शाम को चावल दे सकती हूँ, ठीक है। तो दैट विल कवर माय सीरियल्स, और उससे मुझे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि मैंने कितनी कैलोरीज दे दी, कितना प्रोटीन चला गया, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चले गए और कितना फैट चला गया, ठीक है। इफ आई टेक 5 एक्सचेंज तो मेरा 4 ग्राम तो फैट चला जाएगा, 15 ग्राम्स ऑफ मेरा प्रोटीन चला जाएगा उसमें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट वी मीन बाय एक्सचेंजेस, कि आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि फ्रूट एक्सचेंज है, आप कोई जरूरी नहीं है कि मैं मैंगो ही खिलाऊं, सर्दी आऊंगी तो मैं मैंगो कहाँ से लाऊंगी, मैं एप्पल भी खिला सकती हूँ, ठीक है, मैं ग्रेप्स भी खिला सकती हूँ, मैं ऑरेंजेस भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आई कैन टेक एनी fruit which but I will take 100 grams for one. Let me go to milk. मिल्क में क्या है? सिर्फ दूध नहीं है, मैं पनीर भी दे सकती हूँ, मैं दही भी दे सकती हूँ, मैं बटर मिल्क भी दे सकती हूँ, ठीक है, मैं क्रीम भी दे सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने दूध से बनी हुई कुल्फी या आइसक्रीम बच्चे को खिलाई है तो वो मिल्क पोर्शन में ही आएगा, और मिल्क पोर्शन, एक पोर्शन हम मानते हैं 100 ml, लेकिन 100 ml एक गिलास बराबर नहीं होता, 100 ml आपका एक छोटे कप के बराबर होगा, ठीक है। तो दैट इज वन पोर्शन ऑफ मिल्क, और उसमें से मुझे जो कैलोरीज प्रोटीन्स मिलेगा वो इस एक्सचेंज टेबल में लिखा हुआ है। दूध दूध में फर्क होता है, बफेलो मिल्क, काउ मिल्क, लो फैट मिल्क, टोन्ड मिल्क, इन सब में फर्क आएगा, आपके फैट कंटेंट में डेफिनेटली फर्क आएगा। लेकिन जब हम एक्सचेंज लिस्ट बनाते हैं तब हम हर चीज का एवरेज मान के लेते हैं, इंडिविजुअल अगर आप पकड़ के चलेंगे तो डेफिनेटली अलग आएगा। आप राजमा और मूंग की दाल अगर 30-30 ग्राम्स लेंगे तो उनके उसमें फर्क आएगा, न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन में फर्क आएगा, लेकिन फिर भी वो दालों के साथ ही उनको रखा गया है, बिकॉज एवरेज इन दैट फूड ग्रुप इज द सेम, उन सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उन सबका सिमिलर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, इसलिए उनको एक साथ रखा गया है। जैसे कि मैं अब चावल और गेहूं की रोटी ले लीजिए, बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है, लेकिन मैं सीरियल के एक्सचेंज में कभी चावल भी दे सकती हूँ, कभी बाजरा भी दे सकती हूँ, कभी गेहूं की रोटी भी दे सकती हूँ। एंड दिस इज अ टूल फॉर डाइट्रिशियंस टू मेक अ प्लान वेरी क्विकली। अगर मैं एक एक चीज का अगर न्यूट्रिशन अलग अलग निकालने चलूंगी तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पोहा का निकाला, आप रेसिपी लीजिए, तो पोहे में क्या डलता है? ऑयल भी डलता है, वेजिटेबल्स भी डालेंगे, कोई आलू डालेगा, कोई गाजर डालेगा, जिसके पास जो वेजिटेबल्स है वो डालेंगे,
ठीक है, तो हर वेजिटेबल का क्या मैं अलग न्यूट्रिएंट लूंगी, फिर उसमें कुछ लोग पीनट्स डालते हैं, ठीक है, तो क्या मैं वो लूंगी, राइट। फिर स्पाइसेस का क्या करूंगी, स्पाइसेस काउंट करूंगी। सो फॉर एवरी रेसिपी इफ आई हैव टू डू दिस, हर चीज के लिए अगर मुझे टीडियस तरीके से ये करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल प्याज तो डलेगा ही, तो मैं ऑनियंस का अगर अलग निकालूंगी, ठीक है, पोटेटोज का अलग अलग निकालूंगी, तो एक रेसिपी में यू विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल इन जस्ट वन रेसिपी। हाउ विल यू बैलेंस इट, ठीक है। सो द होल डेज डाइट यू हैव टू गिव टू द पेशेंट, एंड समटाइम्स आपको वीकली डाइट देनी पड़ती है, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस फूड एक्सचेंज लिस्ट इज देयर, दैट it gives you an average of how to do things, and it is an easy and quick tool. Definitely variations आते हैं, when I'm giving examples, you are bringing questions from the examples. Okay, I will still do. ममता, सबकी कैलोरीज सेम, इंडिविजुअल लेवल पे आप देखेंगे तो फर्क हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज हम जब ग्रुप में लेते हैं तो हम उसको सेम लेते हैं, ठीक है। How will we determine the quantity of items? We will go through it. Is very, very important. I will show you all the steps. Okay. Cream is a processed food. I am not talking about the cream which is coming from the market. मैं घर पे दूध से निकली हुई जो मलाई है उसकी बात कर रही हूँ, उसको भी आप मिल्क एक्सचेंज में लेंगे, ठीक है। अगर मेरे 100 ml दूध से आधी चम्मच मलाई निकल रही है तो आई विल काउंट इट, ओके। Just give me a moment. I have a okay, I will show you how to go about it. पहली चीज आपको ये समझनी है कि आपके पास ये एक्सचेंज लिस्ट है, ठीक है। अब अगर मैंने ये प्लान किया है, इज एन एक्सेल फाइल, ओके, अगर मुझे इसमें अगर एक और चीज समझने की है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग है, मीट है, ये सब कुछ है, लेकिन अ पर्सन हु इज अ वेजिटेरियन विल नीदर टेक एग और नॉट टेक मीट एंड चिकन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आप उनके पल्सेस इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि दैट इज द मोस्ट क्लोज टू देम इन प्रोटीन प्रोफाइल, ठीक है। इसमें 7 मिल रहा है, उसमें 6 मिल रहा है, ठीक है। सो आप उनके पल्सेस इंक्रीज कर दोगे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, क्योंकि हमारे पास एक टेबल है तो वी कैन आई बॉल इट कि अच्छा हम ये कर देते हैं तो इससे हमारा प्रोटीन बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब अगर somebody who is having problem with milk or is lactose intolerant, तो you will scrap everything milk। जैसे कि सपोज मैंने 3 एक्सचेंजेस मिल्क के लिए, कि रात को दूध पी ले, दिन में थोड़ा सा दही खा ले और मॉर्निंग में भी मिल्क चला जाए चाय में। सो आई हैव टेकन 3 एक्सचेंजेस 300 ml पर डे। बट अगर जने को सूट ही नहीं कर रहा तो आप उसकी जगह क्या करोगे, ठीक है। सो यू विल रिमूव द मिल्क एंड you will add something else here, so that your energy, protein, carbs and fats are all are balanced, and then you can get the full chart of it. I would suggest that आप एक Excel file बना सकते हैं जिसमें आप ये सारी information enter कर सकते हैं, and then you can use it. I will also show how to use apps for this one. Okay, now there's another thing called the exchange distribution list. You can see that here we have taken 2400 calories, 60 grams protein चाहिए, फीमेल है, सेडेंट्री है और ये एज है। सो योर एक्सचेंज में सबसे पहले सीरियल इसलिए लेते हैं क्योंकि सीरियल इज इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। सो सीरियल्स एंड पल्सेस हम सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ एक्सचेंज लिया है 12 एक्सचेंजेस, यानी कि अमाउंट कितना है 12, इसमें उन्होंने 20 ग्राम्स का एक्सचेंज लिया है, not 30 grams but 20 grams का exchange लिया, that is why the amount is 240 grams, right? So calories is 840, proteins is 24 coming from cereals itself, pulse is and fat is 6.4, then pulse is 2 exchanges, यानी कि हम दिन में you know you can distribute the pulse as per yourself, but दिन में पूरे दिन में 2 exchange pulses के जाने चाहिए, 60 ग्राम ऑफ pulses पूरे दिन में जाना चाहिए,
ठीक है, it can be energy is 200 calories and the proteins is 12 grams, right? Then vegetable A and vegetable B are there. You can understand it here, vegetable A, vegetable B and other vegetables. So in vegetable A, you have, this is vegetable B is green leafy vegetable and vegetable A is the other vegetables. They are not given roots and tubers here. Because this is higher in protein. Your green leafy, maybe green leafy vegetables and other vegetables are this one, and roots and tubers is vegetable A, right? Because they have lot of energy. Then you're coming to fruit. They've given 8 exchanges of fruit here with energy 320 calories. और प्रोटीन negligible होता है, फैट negligible होता है. मिल्क में अगेन 5 exchanges दिया है, आधा लीटर दूध है, ठीक है, उसकी एनर्जी 340 आ रही है, प्रोटीन 16 आ रहा है. सिमिलरली शुगर के एक्सचेंजेस और फैट एंड ऑयल के एक्सचेंजेस दे रखे हैं आपको. अब इससे ये क्लियर होना चाहिए, द होल पॉइंट ऑफ दिस इज दैट अगर आप नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हमारे डिफाइंड है, एक एक्सचेंज होता है, जैसे पल्स का एक एक्सचेंज होता है 30 ग्राम्स का, वो मेरा डिफाइंड है, तो 30 ग्राम्स का पल्स का एक्सचेंज है, और अगर मैंने 2 एक्सचेंज लिए तो मुझे पूरे दिन में 60 ग्राम पल्स खिलानी है. अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ. मैं 1/4 उसको सुबह खिला सकती हूँ, दोपहर में उसको एक पूरा दे सकती हूँ, फिर शाम को उसको मतलब डिनर टाइम पे उसको 3/4 दे सकती हूँ, या आधा दे सकती हूँ और 1/4 शाम को दे सकती हूँ. सो दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन. पहले आप एक्सचेंज प्लान करेंगे कि पूरे दिन में कितना देना है, फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग टाइम में. आप देख रहे हैं 1.5 भी है, 0.5 भी है, 2.5 भी है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रेसिपी यू वांट टू गिव टू योर पेशेंट. ठीक है, तो दैट इज जैसे सीरियल्स के ब्रेकफास्ट में 3 एक्सचेंजेस दे दिए, 3.5 एक्सचेंज दे दिए, लंच में 3 दे दिया, और डिनर में 3 दे दिया, और इवनिंग में 1 दे दिया. ठीक है, तो इसको थ्रू आउट द डे यू विल एक्सपैंड एंड यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू आउट द डे. ठीक है, तो जैसे बेड टाइम में अगर हमने कुछ दिया है तो उसमें हमने फैट नहीं डाला है, देयर इज अ मिल्क, शुगर एंड सीरियल इन इट, सो प्रोबेबली द पर्सन इज गिविंग अ खीर और अ पुडिंग और समथिंग लाइक, नॉट अ पुडिंग बट प्रोबेबली अ खीर और मीठा दलिया और समथिंग लाइक दैट, जिसमें थोड़ा सा दूध पड़ रहा है, एक एक्सचेंज ऑफ सीरियल पड़ रहा है और शुगर जा रही है. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग. नाउ दीज आर द एग्जाम्पल लिस्ट. जैसे कि 1000 कैलोरी में आप क्या क्या दे सकते हैं, 1200 में कितना दे सकते हैं, अप टू 4400 कैलोरीज. देन सिंपल एक्सचेंज लिस्ट कैसे करेंगे, इतनी कैलोरीज है तो आपने उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, जस्ट लाइक हाउ वी डिस्कस्ड अ मिनट बिफोर. इट इज द सेम थिंग. अब इस सैंपल लिस्ट का डाइट प्लान नीचे दे रखा है. This is an English diet plan. So what they are doing is breakfast with fruit and milk. So you have 1 fruit exchange here, 1 milk exchange here, and 2 starch exchanges here, यानी कि cereals का exchange है. ठीक है, a lunch of ham sandwich and fruit, snack of popcorn and juice. Lunch of ham sandwich, 2 slices of bread यहाँ है, फ्रूट एक उसने वापस लंच में दिया है, हैम सैंडविच है तो उसमें 2 exchanges of lean meat है, और फैट है क्योंकि बटर वगैरह पड़ेगा, इट्स अ सैंडविच, राइट, और अ मेयोनीज विल गो इनसाइड, राइट. देन यू गो फॉर स्नैक. स्नैक ऑफ पॉपकॉर्न एंड जूस दिया है, तो जूस का अगेन फ्रूट की एक सर्विंग इसकी कवर हो गई यहाँ पर, स्टार्च की यानी कि सीरियल्स की एक सर्विंग यहाँ पर कवर हो गई है. ठीक है, the next she is going to dinner, and in after that it is having pasta with meat sauce. So pasta will come in the starch, meat sauce will come in the lean meat, and you will have a lot of fat in that. Salad sprinkled with seeds and dressing. Dressing is there. So salad is making up of vegetable, okay, and seeds. Then green beans and corn on the cob, and snack of milk and crackers. Okay, so corn on the cob is another snack, and milk is and crackers is there, and milk is another option. आपने 2 exchanges लेने थे तो वो 2 exchanges आपके breakfast और snack time पे milk का cover हो गया. Okay, this is a diet plan which provides 1735 calories, and 55 to 60% of its calories are coming from carbs, and 15 to 20 from proteins, and less than 30% from fat. Fat का एक thumb rule है कि हम less than 30% ही लेंगे उसको.
ठीक है. So all the distribution of exchanges will be done and meal items will be put in the list. Now this is a long method. There is a small short method, that is the usage of apps. Yes, Swati, you got the right calculation. रवि, अगर हम फ्रूट का एक एक्सचेंज 100 ग्राम होता है, अगर हम 8 एक्सचेंजेस दे रहे हैं यानी कि हम 800 ग्राम तक फ्रूट उनको खिला रहे हैं. ठीक है, इसलिए उन्होंने जूस भी दिया है, क्योंकि जूस में कैसे होता है, यू कैन यूज मोर फ्रूट टू क्रिएट जस्ट अ ग्लास ऑफ जूस में 2 संतरे तो लग ही जाते हैं. ओके, सो यू आर टेकिंग योर 2 to 300 grams there itself. 12 एक्सचेंज मीन्स किसी भी चीज का 12 एक्सचेंज मतलब सपोज सीरियल का ही होगा. सीरियल का 12 एक्सचेंज का मतलब है 12 into 30 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एज पर द टेबल, देन इट विल गिव यू 360 grams ऑफ सीरियल्स. यानी कि मुझे 360 ग्राम अनाज पूरे दिन में देना है उसको, अगर मुझे उसको 12 एक्सचेंजेस ऑफ सीरियल देने. Shireen, yes, we call it exchange because it helps us decide the options, right? Shireen, फैट का थंब रूल मोस्टली ये रहता है that you have to keep it 30 or below. Percentage should be 30 or below. 35% बहुत कम केसेस में चाहिए होता है, 30 से ज्यादा बहुत कम केसेस में चाहिए होता है. तो फैट को आप 30% से ज्यादा डाइट में नहीं. ओके. If you take, yes, Sunidhi, you are correct. If you take 4 chapatis 3 times a day, that will be 12 exchanges. अगर आपकी एक चपाती 30 grams आटे से बनी. वर्षा, आप ये पूछ रहे हैं कि 12 exchanges देने हैं, ये कैसे आपने डिसाइड किया? ये प्रैक्टिस से आता है. यू हैव टू प्रैक्टिस. वी विल गिव यू सम केस स्टडीज हाउ टू प्लान अ मील. ओके, आपको कैलकुलेशंस करने हैं, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कैसे मैं लूं. ठीक है. एंड ऑलवेज व्हेन यू आर मेकिंग दिस, जस्ट कीप अ मील प्लान इन माइंड, क्योंकि ये सब करने के बाद हम एक्चुअल मील प्लान पे आते हैं जो हम क्लाइंट को देते हैं. ओके. नाउ देयर इज अ सेकंड मेथड, इट इज द यूसेज ऑफ एप्स. There's one very good app called Intuitive app. So that is available for the Android phones, and you can, it is divided into a meal calculator, recipe calculator, plain ingredients, and a nutritive calculator. So you have to look into all of them to find out. और उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें रेसिपी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो रेसिपी जब हमने सेलेक्ट करी और क्वांटिटी एंटर कर दी कि 100 ग्राम खाया या 200 ग्राम खाया, तो हमारी कितने उसमें हमें एनर्जी मिली, प्रोटीन मिली, इवन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ब्रेकअप आ जाता है. सो यू कैन टेल अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. सो योर क्लाइंट, यू कैन आस्क योर क्लाइंट टू डाउनलोड इट, और यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंग टू योर ओन मेथड्स. ओके. देन अब इसमें आपको ये देखना होता है कि अगर आप एप्पल दे रहे हैं तो उसमें रेसिपी की जरूरत नहीं है. सो यू कैन जस्ट गो टू द इंग्रेडिएंट्स एंड फिगर आउट व्हाट एप्पल यू आर गिविंग, and then give it to the and enter the quantity that you want to give, and you will keep on adding it for the day's meal plan. ठीक है. So even if you are giving seeds and nuts, you will know that जैसे almonds का उन्होंने nutrients दिया, but that is per 100 grams. Okay. So you have to tell नहीं बाबा 10 ग्राम ही है या 5 ग्राम ही है. तो there you have to put it so that the energy and the rest of the things are calculated accordingly. Okay. Now this is sample plan. Okay, we have talked about exchange, we have talked about how to distribute that exchange, and now we are talking about कि उस exchange को, या जो हमने जो spread out किया है कि हम दिन में इतना exchange दे देंगे, शाम को इतना exchange दे देंगे, उसको हम actually meal plan में कैसे डालें. Okay, how do we actually put it in meal plan so it is good for client. Okay, एनर्जी, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, यहाँ जो लिखा हुआ है ये हम क्लाइंट को नहीं देते, ये हम हमारी कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए. ठीक है. दिस विल okay, this app, if it's not working,
then I would say that you can go for MyFitnessPal or HealthyFyMe. We were usually telling about this app because it was giving very detailed result according to the micronutrients also. और उसमें इंडियन रेसिपीज आपको ज्यादा मिलेंगी. बाकी जो है लाइफ सम हेल्थ और दूसरी दूसरी जो एप्स हैं उसमें यूजुअली वेस्टर्न रेसिपीज मिलती हैं. सो यू कैन गो फॉर HealthyFyMe एंड MyFitnessPal. बट आई डोंट नो कि वो एंड्रॉइड या आईफोन किस किस पे अवेलेबल है, तो वो चेक करना पड़ेगा, राइट. आईफोन पे तो ये MyFitnessPal इज अवेलेबल ऑन आईफोन. HealthyFyMe is also, I think, available on iPhone, but I'm not sure about Android. So that you have to check out. पता लगे तो मुझे बता देना. Okay, Ravi, you can pass on the suggestion to the coordinators. You can put it in the feedback. It will be amazing. All right. So now we are going through the actual meal plan. In the morning, for example, you can give lemon water, okay, a glass of 200 ml water. I'm not counting the drops in the food serving, okay, so you can rest easy. What I'm counting is the almonds, nuts and seeds, like almonds diya, walnuts diya, flax seeds diya, so they are nuts and seeds. Then there is breakfast, idhar diya rice flakes ya upma, rice flakes upma ya veg upma, ठीक है. तो 1 bowl around 50 grams का दिया, तो इतनी हमको एलर्जी मिली, यानी हमारा एक सर्विंग चला गया यहाँ सीरियल्स का. और अबाउट अगर आप वेजिटेबल्स डालते हैं अच्छे से तो देन इट शुड बी लाइक 1/4 आपने वेजिटेबल का आपने यहाँ यूज कर दिया. देन वॉलनट बनाना शेक, सो यू हैव यूज्ड अ मिल्क एक्सचेंज हियर एंड यूज अनदर अ फ्रूट एक्सचेंज हियर एंड नट एक्सचेंज भी आपने इसमें डाला है, तो थोड़ा अमाउंट ऑफ फैट जा रहा है. देन मिड मॉर्निंग में आपने फ्रूट दिया, एक एप्पल दिया छोटा, ठीक है. सो आपका एक फ्रूट का एक्सचेंज यहाँ पर और आ गया. सो यू हैव गिवन अप्रोक्सीमेटली 2 fruit exchanges and 1 cereal exchange and 1 milk exchange अभी तक मिड मॉर्निंग तक. ओके, सो दिस इज हाउ you are going to go till the night. And that's how you will know that मेरा कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ पर कम है and how to adjust. This is where your things will get translated. हमने अब जैसे हमने बनाना शेक लिया, तो हमने बनाना लिया फ्रूट सर्विंग उसका एक्सचेंज लिया और हमने मिल्क का एक्सचेंज लिया. अगर आप उसमें चीनी या फिर हनी डालते हैं तो आपने एक शुगर एक्सचेंज भी उसमें कंप्लीट कर लिया. अगर आप 1 चम्मच शुगर डालेंगे तो 1 शुगर एक्सचेंज खत्म होगा. अगर आप 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो 2 शुगर एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे. अगर आप 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच हनी डाल रहे हैं तो भी आपके 2 शुगर एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे. ठीक है, जो शुगर एक्सचेंज होता है उसमें सिर्फ चीनी नहीं होती, उसमें हनी भी होता है, उसमें गुड़ भी होता है, उसमें मेपल सिरप भी होता है. तो ये सारी चीजें आपके चीनी के एक्सचेंज में काउंट होती हैं क्योंकि दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग यू विद एनर्जी, कार्ब्स. Okay, Healthify is available on Android. Great. What percentage of calories have to be distributed across all the meal? Okay, on an average क्या होता है, हम लोग हमने पढ़ा है कि 60% 60 to 65% आप कार्ब्स लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 12 to 15% आप लेंगे प्रोटीन एंड द रेस्ट इज फैट. जो भी बचता है परसेंटेज में दैट इज यू विल टेक फैट, राइट. सो दिस इज योर breakup. This is your breakup in a normal diet, right? Now, in special cases, when we are dealing with special conditions, then is the time when we increase the protein. Sometimes we have to increase the protein, sometimes we have to decrease the protein, sometimes we have to decrease the carbs, sometimes we have to increase the carbs, sometimes we have to decrease the fat and increase the carbs, or sometimes we have to increase the fat or decrease it. तो ये सारे permutation combination ये depend करता है आपके patient की condition के ऊपर, ठीक है. So I am going to tell you that for weight loss, you are going to take a 50% carb, 50% carb जो कि लो कार्ब में चला गया है, 20% प्रोटीन जो कि हाई प्रोटीन वाले उसमें डेफिनेशन में आ जाता है. 20% प्रोटीन इज हाई प्रोटीन.
It's already coming in that. And then 30% fat. Okay. Now 30% फैट ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब उसको एक्चुअली हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें विजिबल फैट मुश्किल से 10-15 ml ही रहता है, बाकी सारा इनविजिबल फैट रहता है, बिकॉज इट इज गोइंग इन द nuts, it's going in the cereals, pulses, lot of things have fat inherent in them. The meat portions, they're all having fat. So those invisible fats will amount for more fats. Visible fats आप उसमें कम लेते हो, ये वेट लॉस वाले में होता है, और इसी टाइप का रेशियो आप डायबिटीज के लिए भी लेते हो, ठीक है। मोस्टली ये वाला रेशियो आप डायबिटीज के लिए भी लेते हो। इसमें अब चेंजेस होंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू स्पेशल कंडीशंस। प्रोटीन विल गो डाउन फॉर पेशेंट विद रीनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी। नाउ ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द इंट्यूटिव ऐप। ओके, इंट्यूटिव ऐप में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस देखना है, देन यू गो टू दैट ऑप्शन एंड देन यू you will go to the show analysis part of it, and then they will give you the analysis for the full day meal, और तब आपको परसेंटेज भी एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कितना परसेंटेज कार्ब्स है, प्रोटीन्स है और फैट है, ठीक है। ग्राम भी पता लग रहा है, परसेंटेज भी पता लग रहा है, और टोटल कैलोरीज कितनी मिल रही है वो भी पता लग रहा है। Okay, I think this is not for the whole day, this is still some portion only. Okay, when you further add stuff and when you have to add a new recipe, then you go by the ingredients and then you make a new recipe and then you can save it on your profile. Okay, items that do not need preparation, you will find the nutritive values directly going under the tab of ingredients. अगर आप ingredients में देखेंगे, जैसे cucumber हुआ, banana हुआ, apple हुआ, almonds हुआ, ये सारी चीजें आपको ingredient list में ही मिल जाए। Okay, so okay, coming back to the meal plan, we are going, okay, we went till fruit, then it is the lunch where we have quantity, oats ki chapati humne li, barley and oats ki chapati li, and this is going to be 3 servings. Soyabean ka vegetable liya, so that is going to be our bean servings, pulse serving aa gaya, moong dal ka serving aa gaya, then you have vegetable serving. Okay, 1 cucumber bhi agar aap lete hain to at least 70 grams ka cucumber hoga, okay, that you are using. Green tea 1 glass, 5 grams is wrong. Green tea you can take 1 glass, no problem with that. Energy is because you're putting honey, 5 grams it should be for honey. Okay, so this menu, when you are adding and putting it here, see all this menu has been put here, then you will see, okay, now my energy is fine, now it is coming 1200. They are finished till post lunch, right? They finished till post lunch, and you are now getting the fat and the carb distribution accordingly. Then the remaining one, when you see, ठीक है, the remaining one when you see that late evening snack भी आपने ऐड कर दिया, डिनर भी आपने ऐड कर दिया, ये सब जब आपने ऐड कर दिया तो आपका टोटल एनर्जी कितना आया है, ठीक है। So my proteins are 17%, carbs are 47, fats are 36%. So we are trying to hit the targets like this. Okay, फिर इसी में अगर हमें इससे satisfaction नहीं है तो we will go back, we'll change some and we will do the whole process again. Okay, that is what we are doing in the nutritive app. Pratibha, books for diet planning. Okay, I will look for it. We usually use the nutritive value of foods by NIN Hyderabad. That is the base book, because it is taking all possible kind of foods which are available in India. Rafia, if you want to know micronutrients, I would strongly suggest कि आप you go for apps, क्योंकि उसमें micronutrients आपको specifically मिलेगा। गीता, कुकुम्बर, see we are talking about exchange list. अगर कुकुम्बर सूट नहीं करता तो आप उस exchange, कुकुम्बर किस उसमें आता है, other vegetables में आता है, तो other vegetable कोई सी भी आप ले लीजिए उसकी जगह, right? I will write down the name of the book. But I would strongly recommend कि आप ऐप ढूंढ के उससे करिए, क्योंकि उससे टाइम बहुत बचता है।
I am not in a habit because I've been using this nutritive value. So that is another factor. But nutritive value of foods आपको लेनी है तो NIN हैदराबाद की पब्लिकेशन है. I think last उन्होंने अपडेशन करा था 2020 में. You have to check अगर उससे ज़्यादा लेटेस्ट आया है तो. National Institute of Nutrition हैदराबाद का. Nutritive value of foods, and then B. Sri Lakshmi. ब्रीज श्री लक्ष्मी की जो बुक्स हैं वो हमारे बेसिक कोर्स की बुक्स हैं. So she has more than one books. You can go for any books that you like, any topics that you would like to take. Gopalan is also a very good book. C. Gopalan की जो आती है. Thank you, Shireen. Thank you for reminding me. Any other book if you remember? Ravi, I think आपको इस चीज के लिए talk to the coordinator. Okay. Swati, cooked food. Okay. Cooked food कैसे रहता है? We have given you, if you look in the slides, you have a lot of portions which are giving you cooked foods. Okay, they're telling you that how much cereal or pulses you are covering in those foods. So you can take that. For example, I always say ki 30 grams of pulse is not just one katori of dal. If the dal is if the bowl is like 200 ml at least, then the dal is medium thickness, not thin like water. Then only I will count it as one exchange of dal. Okay, rajma क्योंकि dense होता है, भारी होता है, उसकी amount of cooked quantity थोड़ी कम हो जाएगी. You can take 30 grams of rajma as around one vanda. अगर कटोरी आपकी 200 ml की है तो आप उसको 150 ml तक तो आप राजमा को मानोगे कि it is one exchange, right? So this is something which is coming from a lot of work. Because आपको actual क्या होता है कि raw foods को cook किया जाता है, उनके सारे weight लिया जाता है, उसमें पानी कितना गया है और भी चीजें कितनी गई हैं, and then the cooked food is completely different. But what will happen with some foods you don't need? For example, when you take poha, ठीक है, then whatever is 30 grams portion you are taking raw, more or less उतना ही आपका portion cooked आएगा, because not much water is added. But when you're taking upama, you are adding considerable amount of water in it. So that time the same, but suji is dense. So 30 grams will be small in, when you see at 30 grams poha and when you see it's 30 grams of suji, it is going to be looking very different in raw position itself. Okay. So suji is going to soak up a lot of water and it's going to create that one big bowl of suji. And poha is not going to soak up water and still it will create one bowl of poha. So they both will comprise of one exchange of cereals. Okay, so you can or you can have a weighing scale in the home and then you can figure out what you want to do. While planning a diet, we are going to take into consideration the time of consumption of calories like night, morning, before sunset, as suggested in Ayurveda, or just total calories in 24 hours. When we take modern nutrition, we do not go by the circadian rhythms. We are basically just telling that 24 hours में आप कितने calories ले सकते हैं, because हर एक जने का हर एक जने की requirement, उसका schedule अलग अलग होता है, तो we can't really impose that on people. We can't really impose that on people. श्रुति, कुक करने के बाद, सोक करने के बाद न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज होता है क्या? कुक्ड फूड्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो हम जो रॉ फूड्स हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से ही वो कैलकुलेशंस करते हैं.
बट यस थोड़ा बहुत चेंज होता है बिकॉज कुकिंग विल रिड्यूस सम न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल अगर विटामिन सी है किसी चीज में और हमने उसको कुक कर दिया है, ओके, हाई हीट पे अप्लाई कर दिया है, तो विटामिन सी उसमें से रिड्यूस हो जाएगा बहुत ज्यादा बिकॉज वो हीट से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है. Yes, Shireen, totally. If one day your diet is a little heavy, you can go for light meals in next 2-3 days. Should nuts be taken empty stomach, Minakshi? That is not a necessity. आप उसको खाने के साथ में भी कभी ले सकते हैं, मिड मॉर्निंग भी ले सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह खाली पेट ही खाना है. At least I don't know any reason why it should not be taken. बनाजा, दिस इज नॉट वेयर फैट को हमने ज्यादा नहीं लिया है. फैट इज 35% है, वो ग्राम नहीं है. फैट इज नॉट 35 ग्राम, इट इज परसेंटेज. और प्रोटीन 15% है. See, all the cooking methods are going to affect the nutrient content. तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं. कुक्ड फूड्स का जो न्यूट्रिटिव कंटेंट है वो निकालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड एवरीबडी मेक्स द सेम थिंग इन वेरी डिफरेंट वे. यानी कि एक घर की दाल भी दूसरे घर की दाल से मैच नहीं करती, सेम दाल. तो कुक्ड फूड का निकालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो मोस्टली एवरेजेस आर टेकन एंड मोस्टली रॉ फूड कितना लगा है उसकी वैल्यूज के हिसाब से एवरेजेस आर टेकन आउट. ओके, सो ऑल द जो फूड्स कुक हो रहा है उन सबका importance है and it will help in the bioavailability of the nutrients. And yes, nutrient profile will change as and when जितना processing होगा food में उतनी उसकी nutrient profile change होती जाएगी. तभी बिस्किट का न्यूट्रिएंट और दलिया का न्यूट्रिएंट सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि दलिया तो गेहूं के बिल्कुल पास है, सो उसका मैच करेगा गेहूं से. लेकिन जो बिस्किट है वो मैदा से बना है, आया वो भी गेहूं से ही है, लेकिन वो मैदा हो गया है, तो उसमें अलग उसका बहुत सारा न्यूट्रिएंट हट गया है. ठीक है, सो यू विल गेट ऑल दीज वैल्यूज. यस कयान, आप पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए. जी मैम, मेरे को ना जैसे ये एक्सचेंज वगैरह आता थोड़ा सा बनाना, लेकिन जब मैं न्यूट्रिटिव पे डालती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत ज्यादा. जैसे मैंने इसको दिया है, पोहा दिया है सुबह, तो सुबह पोहा मैंने उसको दे दिया, भैया तू ले ले 60 ग्राम्स ले ले. तो जब मैं न्यूट्रिटिव ऐप पे सारा अपना कैलकुलेट करके डालती हूँ, जैसे मैंने अपनी तरफ से बड़ी हेल्दी डाइट बनाई है, पोहा दे दिया, दाल दे दी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा प्रोटीन डाल देती हूँ, पनीर भी दे देती हूँ, तो वो करते 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 फैट ज्यादा हो जाता है, प्रोटीन नॉर्मल रहता है, प्रोटीन मतलब अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, और कार्ब्स लिमिटेड रह जाते हैं. मतलब कार्ब जैसे अगर मैंने 200 देने हैं वो 160 170 पे रह जाते हैं, और जो फैट है वो बढ़ जाता है. जैसे मैंने मूंग दाल चिल्ला सोचा है कि दाल देनी, बेचारा बोर हो जाएगा, चलो मूंग दाल चिल्ला दे देती हूँ उसको खाने को, रात को दाल जो देनी है चिल्ला हो जाएगा, वेजिटेबल्स चली जाएंगी. अपनी तरफ से मैंने एक हेल्दी ऑप्शन बनाई है. बट जब मैं इसको न्यूट्रिटिव पे डालती हूँ तो फैट ही वो इतनी ज्यादा मतलब शो कर देता है, तो उसका सारा जो प्रोफाइल है उसमें फैट मेरी बढ़ जाती है. मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है काफी. Okay, so the thing is that you have to remember that usually जो चीजें प्रोटीन में हाई होती हैं उनमें फैट होता है. ठीक है, so you have to cut it at some places. जैसे कुकिंग मेथड्स आप चेंज करो, उसमें तेल का यूसेज नहीं हो, जैसे आपने चिल्ला बनाया नॉन स्टिक पे बनाओ. ठीक है, so that you don't have to use oil at all. Then there is you can go for more steamed vegetables instead of sauteed. स्टर फ्राई वेजिटेबल की जगह स्टीम वेजिटेबल कर सकते हो. ठीक है, पोहे में उनको बोल सकते हो कि आप 1 चम्मच तेल से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो. आप उसमें अपनी आपकी प्रोटीन सही आ रही है, फैट बढ़ रही है, राइट. सो लो फैट मिल्क यूज करो किसी भी प्रोडक्ट के लिए. आप पनीर अगर दे रहे हो तो उनको बोलो डबल टोन दूध का पनीर बनाओ और वही पनीर यूज करना है. So that is how you change the methods to just get to that point. Okay. मतलब मैम अगर ऐसे देखा जाए, मतलब अगर हम घर पे भी जो ये डाइट प्लान मतलब करने से पहले, ये सब कुछ करने से पहले, मैं जो घर में नॉर्मल हम खाते थे और हम कहते थे हम बाहर का नहीं खाते, हम हेल्दी खाना खाते हैं, तो इट्स अराउंड 700 कैलोरीज आते हैं, देन रिच इन फैट एंड रिच इन कार्ब्स एंड प्रोटीन. तो जय माता दी.
That is true. Lot of Indian diets are low in protein, but again, I beg to differ. अगर आप enough amount of cereals लेते हैं, अगर आप enough amount of pulses लेते हैं, और अगर आप enough amount of सब्जियां लेते हैं, हरी सब्जियों में भी प्रोटीन है, मोरिंगा is very good for proteins. तो आप अगर ये सब चीजें लेते हैं तो आपका प्रोटीन भी काफी कुछ कवर हो जाएगा. दूसरा, प्रोटीन की जो वैल्यू है, उसका इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस होता है, पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया गया है उसको. ठीक है, एक नॉर्मल जने को 0.6 से 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर अ पर्सन. लेकिन हमको ये भ्रांति हो गई है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो मिनिमम होता है जी. मिनिमम नहीं होता है जी. कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है लोगों की, घर पे बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है इतनी. तो द होल आइडिया इज दैट दो प्रोटीन इज सो इम्पोर्टेंट कि उसकी वैल्यूज इन्फ्लेट हो गई हैं, बट एक्चुअली आपको नहीं चाहिए इतना प्रोटीन. When you go to the baseline, so you will know that protein is very important, but inflated values नहीं है. पहले if you see the person NIN में अगर आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे sedentary person को define किया, you will know that वो sedentary भी आलसी person नहीं है. It has a life active 8 hours activity उसमें भी है. Okay, so they are considering not a person who sits in the AC cars, go to the supermarket, buy in the AC environment, come back. All these small things, they are going to affect the health and they are going to affect your BMI. ओके मैम, जैसे अब हम लोग मैंने किसी को डाइट दी है तो मैं उनको बोलूं कि आप, या मैं खुद ही उनको देने से पहले एक बार उसका वेट चेक करूं. जैसे न्यूट्रिटिव ऐप पे मैंने चेक करना है कि मैंने उसको 30 ग्राम्स ऑफ दाल है जो मैंने मूंग दाल चिल्ला बनाया मान लो, तो बनाने के बाद मुझे उसका वेट चेक करना चाहिए अगर मैंने प्रॉपर देखना है न्यूट्रिटिव ऐप पे उसकी कितनी वैल्यू है, तो यहाँ आइडिया ही लगाकर मैं डाल जो ऐप में यूजुअली देते हैं ना, वो स्टैंडर्डाइज रेसिपीज देते हैं. अगर आप उसमें चेंज करते हैं तो मैम वेट जैसे मैंने पोहा बनाया है तो या चिल्ला ही बनाया है, तो पहले अगर मैंने न्यूट्रिटिव ऐप पे उसकी वैल्यू चेक करनी तो मुझे इसका पहले वेट भी चेक करना पड़ेगा. अप्रोक्सीमेशन आपको डालना पड़ेगा ना. एक रेसिपी में वो एक सर्विंग में वो लोग कितना ले रहे हैं, 30 ग्राम्स ले रहे हैं, 40 ग्राम ले रहे हैं, 50 ग्राम ले रहे हैं, वो तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि हर एक जने का बोल डिफरेंट होता है. इफ यू वांट टू गो दैट डीप यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन वर्क विद एवरेजेस. ओके. तो मैम जैसे ये मेटाबॉलिक रेट है जो हमने BMR निकाला है, वो तो हमारी एज और हमारे वेट के साथ ऊपर नीचे जाता रहता है ना, चेंज होता रहेगा. लेकिन अगर जैसे अभी मेरा वेट एक स्टिल है और मेरा 1 ईयर में मेरा जो BMR है वो चेंज हो सकता है, अप डाउन जा सकता है BMR मेरा, जैसे हमने पढ़ा था. डिपेंड करता है. अगर कोई जना स्टार्वेशन मोड में चला जाएगा तो उसका BMR लो हो जाएगा. जैसे एक्सट्रीम डाइटर्स जो करते हैं उनका BMR लो हो जाता है, फिर वो ऊपर नहीं आता. ओके. नहीं, जैसे अब मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट ही आता है जो मतलब बड़ी स्टारवेशन करते हुए आया है और कि भाई हम तो पतले हो रहे हैं, हम तो दिन में 1 रोटी खा रहे थे या हम दिन में 2 रोटी खा रहे थे पतले होने के लिए. They will have micronutrient deficiencies. जो लोग भूखे रहकर वेट लॉस करते हैं उनकी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी. तो फिर अब मैंने उनको, अगर वो मेरे पास अब आया कि भाई हम स्टक हो गए, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, तो अब हम आपके पास आए हैं, तो उनका जो BMR आएगा वो तो मैं उनकी एज और जो मेरे पास बायोडाटा है उसके हिसाब से करूंगी ना. तो BMR जो मेरे पास उनका आएगा कि हाँ ये इनका वो है, तो ऑब्वियसली वो जो उनका एक्चुअल है स्टारवेशन की वजह से उन्होंने अपना लो किया तो लो होएगा ना उनका फिर BMR जो उनका एक्चुअली में होएगा. तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लो इसलिए हो गया ना क्योंकि उनका वेट लो हो गया था. ओके. तो आप उनको BMR के हिसाब से ही डाइट देंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि it just goes, it drops down. ओके मैम. और द बॉडी क्या करती है, कंजर्व करने लग जाती है फैट फिर उसके बाद. यस. तो ओके. और मैम माय थर्ड क्वेश्चन है कि जैसे कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं हमको वेट नहीं कम करना, हमारा वेट ऑलरेडी सही है, हमें इंच लॉस करना है, तो उसके लिए भी हम यही डाइट प्लान करेंगे 500 माइनस कैलोरीज करके ही? नहीं, यू विल चेंज द डाइट कॉम्पोजिशन. आप उनकी कैलोरीज कम नहीं करोगे, सिर्फ ये देखोगे कि वो कुछ अनहेल्दी ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं, फैट परसेंटेज तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है उनका, तभी उनका इंच लॉस नहीं हो रहा, ब्लोटिंग वगैरह तो नहीं है बॉडी में. So all those things that you should take. तो मैम इसमें हम कौन सी कॉम्पोजिशन करेंगे, मतलब प्रोटीन हाई करेंगे और कार्ब्स एंड फैट्स को लो करेंगे? इसमें कैसे कॉम्पोजिशन इसकी कैसे करेंगे? कार्ब्स को लो नहीं करोगे आप, पर फैट्स को आप लो करोगे. फैट्स को लो करोगे तो अपने आप आपको कार्ब का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 100% पे लाना है ना उसको.
आप उनकी डाइट Okay. एनालाइज करो, अगर वो उनकी ज्यादातर कैलोरीज फैट में से आ रही है, जैसे कि 100 ग्राम फैट जा रहा है बॉडी में एंड दे रिक्वायर ओनली 70, सो यू हैव टू सी दैट वो 30 ग्राम्स का डेफिसिट कैसे क्रिएट करें, फिर वो कहाँ से आएगी एनर्जी, प्रोटीन्स और कार्ब से ही आएगी। तो आपको थोड़ा कार्ब्स और थोड़ा प्रोटीन्स बढ़ाना पड़ेगा उनकी डाइट में, और फैट आपको करना पड़ेगा लो। Oh, ठीक है, okay, ma'am. Okay. कैलोरीज उतने ही रहेंगे, सिर्फ यू विल प्ले विद दीज नंबर्स ओनली, कि आप उनके परसेंटेजेस थोड़ा इधर उधर करें। तो मतलब कि अगर जैसे उनका जो भी वेट है इस हिसाब से जो उनका मेंटेनिंग वेट वाली कैलोरीज है मैं उन्हीं कैलोरीज के साथ उनका डाइट प्लान बनाऊंगी विद द करेक्ट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस। ओह, करेक्ट। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। Sunidhi, how to calculate calorie requirement for weight? We just discussed it. BMR will always happen as per current weight. It will not will go with the ideal weight. Okay. No, we don't need to calculate energy for infused water. Banaja, cooking in non-stick utensil is up to you. If you want, you can use it. If you don't want, you may not use it. But if non-stick utensils is used, then it will lower the fat consumption considerably. Shirin, yes, when you are taking a general balanced diet, just say we have taken a balanced diet, we have taken a person who is a normal BMI person, और फिर उनकी डाइट हमने प्लान करने की कोशिश करी है, so that is a balanced diet or normal diet that we are taking. We are not taking any special case there, but if you want to reduce the weight of that person, then we have told that इतना आप लो कर सकते हैं. Exercise. Okay, now what will happen is I have explained you the steps of diet planning. Now I am going to give you homework for this diet plan. It will come through your coordinator and you are going to try to do it. But for today, I want everybody to calculate their BMI, BMR and with the activity factor उनको calculate करना है, total daily energy expenditure. ये तीन चीज आपको calculate करनी है. I'll write it here so that you understand very well. You have to calculate. आप अपने घर में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आएगा भी नहीं. कैलकुलेट योर BMI, कैलकुलेट योर BMR या फिर उसको रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एंड देन कैलकुलेट योर TDE जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर लगेगा. तो ये तीनों चीजें आपने कैलकुलेट करनी है. अपनी कैलकुलेट कीजिए, अपने घर वालों की कैलकुलेट कीजिए, किसी भी तरीके से कैलकुलेट कीजिए. आज ये कैलकुलेट करनी है ताकि अगर इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कल मैं बता सकती हूँ उसका जवाब, सो दैट यू कैन क्वेश्चन मी प्रॉपर्ली एंड वील डू दिस. Okay, Reshma, Mamta, Ramagupta, I am not going to take any more questions now. Please note it down. Either we'll take it tomorrow or in the interactive session. We have exceeded our time limit. So maybe we can take it tomorrow's class after the class. Okay.